Students, let us start with the instructions of 8086. From today onward, we will study the instructions of 8086 microprocessor. So again, in 8086 instructions, the first type of instructions are of data transfer instructions. तो पहली कैटेगरी हमारी डेटा ट्रांसफर की है. And this data transfer instruction, these data transfer instructions are similar to 8085. As you see कि यहाँ पर भी हम जो पहली इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे वो मूव इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे. And move instruction is similar to 8085. But the difference here is that we can move either 8-bit or 16-bit data. So we need to specify the फर्स्ट इंस्ट्रक्शन मूव की है. अगेन जो निमोनिक है सेम है 8085 की तरह MOV यूज किया जा रहा है. स्पेस देके हम रजिस्टर स्पेसिफाई करेंगे और कॉमा देके इमीडिएट डेटा. नाउ अब यहाँ पर हमें ये चीज मेंशन करने की जरूरत है कि वी आर मूविंग 8-bit डेटा और 16-bit डेटा. तो इफ this immediate data is 8-bit data, then we need to specify a 8-bit register. If this is 16-bit data, then we need to specify a 16-bit register here. And the data is moved to register. And we are not using instruction MVI here because in 8085 we studied MVI instruction when we are moving an immediate data to register or memory. तो वो MVI हम यहाँ नहीं यूज करेंगे कहीं पर भी. We will always use move instruction. And as per the instruction, जो भी डेटा हमें मूव करना है हमें उसी के अकॉर्डिंग रजिस्टर स्पेसिफाई करना होगा 8-bit या 16-bit. And this data can be transferred to a register specified here, or it can be transferred to the memory address specified in the instruction, or we can transfer data from memory to accumulator also. And when we are transferring to accumulator, again we need to specify कि we are transferring 8-bit data or 16-bit data. अगर हमें 8-bit data transfer करना है तो we will use AL, और अगर हम 16-bit कर रहे हैं तो we will use AX in place of accumulator. Rest operation same है, बस there is a difference in syntax only. Now reverse operation can also be performed. We can transfer the data of accumulator to memory. Again we need to specify AL or AX, and accordingly जो data होगा वो memory location में store हो जाएगा. अब memory location में अगर हम data को store कर रहे हैं तो अगर 8-bit है तो it will be stored in the memory location which is specified here. If the data is the data of accumulator we are moving is of 16-bit, means we are using AX register, then it will be saved in 2 consecutive locations. Means कि अगर यहाँ पर हमें memory address 0301 given है तो जो 16-bit का data होगा वो 2 addresses पे जाके store होगा. 8-bit यहाँ store होगा, 8-bit यहाँ store. Rest process same है data movement का. And we can also move data
between registers or between memory and register. तो register to register करेंगे तो we will specify both registers here, either 8 bit और 16 bit. मेमोरी से रजिस्टर कर रहे हैं, अगेन हम यहाँ पर 8 बिट या 16 बिट जो भी करना है वो स्पेसिफाई कर देंगे, मेमोरी से रजिस्टर में करना है। तो ये तीन यहाँ पर तीन तरह के एग्जांपल्स इस टाइप में इंक्लूड है। देन हमें सेगमेंट रजिस्टर भी गिवन हो सकता है, तो we can move data of memory or register to segment register also. It will be specified in this instruction. और इसका रिवर्स भी पॉसिबल है कि we can move data from segment register to memory or any of the general purpose register also. These are the instructions related to the data transfer. And the important thing again is that कि जो flags हैं वो affect नहीं हो रहे हैं. No flags are affected when the move instruction is executed. Then the next instruction are related to load, store or exchange. तो लोड एंड स्टोर इंस्ट्रक्शंस हम लोगों ने 8085 में भी स्टडी की थी, LDA STA टाइप से इंस्ट्रक्शन। तो टास्क तो सिमिलर है बट सिंटैक्स यहाँ पर चेंज है। अब सिंटैक्स में क्या चेंजेस है? सिंटैक्स में क्या है कि निमोनिक चेंज हो गए एंड वहां पर हम जो लोड और स्टोर यूज कर रहे थे दैट इंस्ट्रक्शन वाज फॉर एक्यूमुलेटर ओनली, बट यहाँ पर हम रजिस्टर और मेमोरी के लिए भी यूज करते हैं। तो mnemonic है LDS and register comma memory. This is the syntax of this instruction, and this instruction loads a word, means 2 bytes of data from specified memory locations. जो भी memory location यहाँ पर given होगी, तो 2 consecutive memory locations के data को ये यहाँ पर load करेगा into the specified register, which register is specified in this instruction. And it also loads a word from the next 2 memory locations into DS register, यानी data segment register में भी ये next 2 memory locations को store करें। तो एग्जाम्पल गिवन है, LDS दिया है, स्पेस करके SI लिखा है एंड देन 0200। तो इस इंस्ट्रक्शन में this is the address of the memory and the data stored in this address and the next address, yani 0201, both data will be moved to this SI, yani source index. Then iska reverse operation bhi hai, LES is the mnemonic and register comma memory करके हम यहाँ पर, sorry, it is not opposite of that, it is a different instruction. As you see कि जो हम इस फर्स्ट इंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं LDS की, तो in this case this DS is representing this data segment register and in this case this ES is representing the extra segment register. The difference is only this, the rest all the operations are same in both these instructions. Similarly, अगर हम LEA लिख देते हैं तो
this instruction will become for extra segment. The next instruction LAHF and SAHF. LHF में क्या होगा, when this instruction is executed, तो यहाँ पर क्या है कि ये जो F लिखा हुआ है, this F means कि हम flag registers की बात कर रहे हैं. अब this instruction will load low order 8 bits of the flag register into AH register. मीन्स कि हम जैसे फ्लैग रजिस्टर की बात कर रहे हैं, फ्लैग रजिस्टर इज 16 बिट और इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, लोअर 8 बिट एंड हायर 8 बिट. So when this instruction is executed, these lower 8 bits of flags are moved to the AH, यानी higher part of the accumulator. और जब आप इसको फ्लैग्स को स्टडी करेंगे तो ये जो लोकेशंस हैं 8 bit location, it will include these flags only. Rest locations undefined. When SAHF is executed, then reverse operation of this instruction will happen. Means the content of AH register, यानी AH के जो content होंगे, it will be moved to low order 8 bits of flag register, यानी यहाँ move. तो in previous case क्या था, ये data यहाँ पर जा रहा था, and in this case this data will be moved to this location. इसके बाद फिर next instruction है XL80 और XL80B. तो यहाँ पर XL80 से मतलब है कि यहाँ पर हम लुकअप टेबल की बात कर रहे हैं. तो लुकअप टेबल इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ मेमोरी, और यू कैन से इट इज ऑल्सो इट इज लाइक जैसे कि हम सेगमेंटेशन मेमोरी का कर रहे हैं, उसी तरह से एक पर्टिकुलर कुछ स्पेस मेमोरी का दिया हुआ है इन द फॉर्म ऑफ लुकअप टेबल. What this instruction will do? This instruction reads a byte from lookup table. The BX register is loaded with the starting address of the lookup table. तो जैसे हमारे पास में सेगमेंटेशन में डिफरेंट मेमोरी सेगमेंटेशन है और हर एक सेगमेंट का कुछ स्टार्टिंग एड्रेस है, वैसे ही लुकअप टेबल का भी कुछ स्टार्टिंग एड्रेस होता है, एंड दिस स्टार्टिंग एड्रेस इज लोडेड इन दिस BX register. An 8-bit element is placed in AL when XL80 is executed. तो स्टार्टिंग एड्रेस हमारा लुकअप टेबल में हो गया. लेट अस अज्यूम कि ये एक हमारी लुकअप टेबल है जिसमें कुछ मेमोरी लोकेशंस हैं, ये कुछ लोकेशंस हैं, हर एक लोकेशन का कुछ ना कुछ एड्रेस होगा. सॉरी, एंड देयर मस्ट बी सम स्टार्टिंग एड्रेस as we discussed in segmentation also, कि हर एक सेगमेंट का कुछ स्टार्टिंग एड्रेस होता है 16 बिट का. तो दिस लुकअप टेबल इज आल्सो हैविंग सम स्टार्टिंग एड्रेस, एंड उसके बाद में जैसे हमें किस डेटा को एक्सेस करना है, let us take this data is to be accessed. So what we will do, we will add a 8-bit data which is locating this location, and that data is placed in AL. So we will add BX and AL to get the address of this location. जैसे कि हम प्रीवियस केस में किसी भी एड्रेस को डिटरमाइन करने के लिए कर रहे थे किसी सेगमेंट में, तो हम लोग क्या करते थे कि हम लोग सबसे पहले लेते थे स्टार्टिंग एड्रेस उस सेगमेंट का, और उसके बाद में उसमें 16 बिट का, सॉरी 8 बिट का, एक 8 बिट या 16 बिट जो भी एड्रेस हमें गिवन होता था उसको हम उसमें ऐड कर देते थे.
सो दैट कि हम उस लोकेशन पे पहुंच जाए जिस लोकेशन के डेटा को हमें एक्सेस करना है। ये एग्जांपल हम लोगों ने आपके साथ में शेयर किया था। तो सेम चीज यहाँ पर भी है कि bx में हमारे पास में एक डेटा ऑलरेडी स्टोर्ड है और al में हमारे पास में एक 8 बिट का डेटा स्टोर्ड है जो कि हमें इस लोकेशन पे ले जाए। तो हमें क्या करना है, हमारा ऑब्जेक्टिव ये रहेगा कि हमें इन दोनों लोकेशंस को, इन दोनों एड्रेसेस को ऐड करना होगा सो दैट कि हम उस डिजायर्ड ऑफसेट एड्रेस तक पहुंच सके जिसमें हमें लुकअप टेबल में जाना है और फिर उसको हम रीड कर सकते हैं। अब इसके बाद क्या है कि द कंटेंट ऑफ दिस लोकेशन, मतलब जो अभी हमने कैलकुलेट किया है एड्रेस, इज मूव्ड टू एल रजिस्टर। अब उसके बाद में ये जो डेटा होगा, इस डेटा को ये इंस्ट्रक्शन पिक करेगी एंड किस में मूव कर देगी, ए एल रजिस्टर में, बिकॉज इट इज ऑफ 8 बिट, तो इट विल बी मूव टू ए एल रजिस्टर। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज XCHG एंड XCHG का टास्क क्या है, टू एक्सचेंज कंटेंट्स। अब यहाँ पर एक्सचेंज जो होगा वो किसके साथ होगा, एक्सचेंज होगा कंटेंट्स जो रजिस्टर स्पेसिफाइड है इसके कंटेंट एंड कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर, इन दोनों के कंटेंट्स आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे, AX एंड जो भी रजिस्टर स्पेसिफाइड है। देन अगर हम XCHG के बाद रजिस्टर और कॉमा करके कोई रजिस्टर या मेमोरी स्पेसिफाई कर देते हैं तो बिटवीन दीज टू डेटा एक्सचेंज विल हैपन। तो जो भी प्लेसेस यहाँ पर डिफाइंड होंगी, अगर रजिस्टर और मेमोरी डिफाइंड है तो रजिस्टर और मेमोरी के कंटेंट चेंज हो जाएंगे, और अगर रजिस्टर एंड रजिस्टर डिफाइंड है तो रजिस्टर और रजिस्टर के कंटेंट आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे। देन फिर पुश और पॉप इंस्ट्रक्शंस हैं। नेक्स्ट, these instructions are also in data transfer. So what push instruction will do? Push instruction pushes or sends data of the register or memory which is specified in the instruction to the top of the stack. तो जब भी पुश इंस्ट्रक्शन मिलेगी तो इट इज ऑलवेज रिलेटेड टू द स्टैक। अब लाइक जैसे यहाँ पर 4 इंस्ट्रक्शन है टोटल, तो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन देख रहे हैं तो यहाँ पर का यहाँ सिंटैक्स क्या है, PUSH स्पेस रजिस्टर। तो इस रजिस्टर के जो कंटेंट होंगे, these contents will be sent to the top of the stack। ऐसे ही अगर पुश के साथ में हम मेमोरी और या रजिस्टर लिख देंगे तो आइदर मेमोरी या रजिस्टर जो भी स्पेसिफाइड होगा उसके कंटेंट को हम कहाँ मूव कर देंगे, टू द टॉप ऑफ द स्टैक। देन अगर कोई सेगमेंट रजिस्टर यहाँ पर स्पेसिफाइड है पुश इंस्ट्रक्शन के साथ, तो द डेटा ऑफ दिस सेगमेंट रजिस्टर विल बी मूव टू द टॉप ऑफ द स्टैक। तो स्टैक क्या है, स्टैक हमारे पास में एक कंप्लीट मेमोरी लोकेशन है और उसके टॉप में ही हम ऑलवेज डेटा को मूव करते हैं व्हेनेवर दिस इंस्ट्रक्शन पुश इंस्ट्रक्शन इज एग्जीक्यूटेड। के बाद में फिर जो लास्ट है दैट इज पुश F। तो हेयर F इज स्पेसिफाइंग दैट वी आर मूविंग द डेटा ऑफ फ्लैग रजिस्टर टू द टॉप ऑफ स्टैक। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ पुश इंस्ट्रक्शन। एंड जब हम पीओपी इंस्ट्रक्शन यानी पोप इंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो जस्ट अपोजिट टास्क परफॉर्म होता है पुश का। सिंटैक्स सेम रहेगा, पुश की बजाय हम यहाँ पर पोप लिखेंगे। जैसे फर्स्ट को आप कंपेयर करेंगे बोथ फर्स्ट इंस्ट्रक्शन, तो पुश की जगह पे सिर्फ और सिर्फ पोप लिखा हुआ है, पीओपी एंड स्पेस देके रजिस्टर लिखा है। तो व्हाट दिस इंस्ट्रक्शन विल डू, इट विल move the top of the stack to this register। अब
यहाँ पर क्योंकि ये 16 बिट रजिस्टर स्पेसिफाइड है, यहाँ पर भी ये 16 बिट स्पेसिफाइड है, तो जब भी हम टॉप ऑफ द स्टैक की बात कर रहे हैं and we are moving 16 bit data, so it means we are talking about the top two locations of stack. तो अगर हमें स्टैक से रजिस्टर में ट्रांसमिट करना है तो हम इन दोनों लोकेशन के डेटा को ट्रांसमिट करेंगे टू रजिस्टर, बिकॉज रजिस्टर हमने जो स्पेसिफाई किया है यहाँ पर इट इज ऑफ 16 बिट and this location is storing 8 bit and 8 bit. That is why we are calling the top two locations of stack to the register. And same चीज पुश में भी है कि हमारे पास जैसे 16 बिट का रजिस्टर है तो ये टॉप टू प्लेसेस में स्टैक के स्टोर होगा. तो जैसे हमने पुश में देखा कि वी कैन यूज रजिस्टर, वी कैन यूज मेमोरी और रजिस्टर, और वी कैन यूज सेगमेंट रजिस्टर, और वी कैन मूव फ्लैग बिट ऑफ फ्लैग. तो सेम रिवर्स ऑपरेशंस आर आल्सो अवेलेबल. We can move the top of the stack to the memory location given in this instruction, or we can move the top 2 bytes of the stack to the segment register given in the instruction. तो ऑलवेज हमें करना बस यही है कि we will take top 2 locations of stack. That is why आप देख रहे हैं कि हर एक इंस्ट्रक्शन के आगे लिखा हुआ है 2 bytes from the top of stack. तो 2 bytes means 2 memory locations, because 2 bytes का मतलब हो गया 16 bit of data, and 16 bit data can be stored in 2 locations because one location can store only 8 bit of data. Then फिर POPF. तो एज वी सी की पुश एफ में हम क्या कर रहे थे, फ्लैग के डेटा को स्टैक में सेंड कर रहे थे. तो when we execute this POPF instruction, to top of the stack will be moved to flag register, and again we will move 2 bytes from the top of stack, or we can say top 2 locations of stack to the flag register. Okay, then फिर next instruction is in instruction. तो यहाँ पर हम in instruction स्टडी करेंगे, फिर next हम out instruction स्टडी करेंगे. तो in and out is also a part of data transfer. So while executing in instruction, so we already studied in 8085 that whenever we write in instruction, it is always related to the accumulator, and the port specified after the in instruction will move the data to accumulator. But in case of 8086, we need to specify accumulator in this instruction syntax, because in 8086 again I will say the same lines ki we can transfer either 8-bit data or 16-bit data. That is why we need to specify कि हम accumulator में 8-bit transfer कर रहे हैं या 16-bit transfer कर रहे हैं. If we are transferring 8-bit data, we will specify, we will write AL in this place. If we are taking 16-bit of data, then we will write AX, and then we will after comma we will specify the 8-bit port address of the input port. Similarly, next instruction is INAC, DX. So what this instruction will do, इस instruction में क्या है कि जो पोर्ट का एड्रेस है,
जो हम यहाँ पर डायरेक्टली स्पेसिफाई कर रहे हैं इन दिस इंस्ट्रक्शन, this port address is stored in this DX register. That is why this DX register is mentioned here, and the port address stored in this register is being used, and the data will come from the port address stored in DX register, and it will be moved to the accumulator. And again, if 8-bit data is moving, we need to specify AL. If 16-bit data is to be moved, we will specify AX in this instruction. And before using this instruction, we need to store port address in DX. So we require an instruction or a program before this instruction which will store port address in DX register. So there must be some syntax for that also, कि हमें पहले DX में किसी पोर्ट डेटा को, पोर्ट एड्रेस को स्टोर करना पड़ेगा, देन ओनली हम इस इंस्ट्रक्शन का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं. एज इन केस ऑफ 8085 हम लोग क्या कर रहे थे कि हम जैसे मेमोरी का यूटिलाइजेशन करते थे कभी भी, तो हम क्या करते थे, HL रजिस्टर पेयर के एड्रेस को पिक करते थे फॉर कॉलिंग एनी डेटा फ्रॉम मेमोरी. बट फॉर दैट पर्पस वी नीड टू स्टोर address in HL register pair first, then only we can use memory. The same thing is here कि हमें पहले DX में कोई पोर्ट एड्रेस डालना पड़ेगा, तब हम जा करके इस इंस्ट्रक्शन का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं. तो एग्जांपल्स दोनों लिखे हुए हैं. अगर हम 8 बिट कर रहे हैं तो देखिए INAL DX है, और अगर हम 16 बिट कर रहे हैं तो INAX एंड कॉमा करके यहाँ पर DX मेंशन होगा. ये प्रिंटिंग है यहाँ पर, ये DX. टास्क सेम परफॉर्म होगा, डेटा ट्रांसफर हो जाएगा इनपुट पोर्ट से एक्यूमुलेटर. नेक्स्ट फिर अगेन आउट इंस्ट्रक्शन है. आउट इंस्ट्रक्शन का सिंटैक्स भी बिल्कुल इन इंस्ट्रक्शन की तरह ही है, बस क्या है कि यहाँ पर जो प्लेसेस हैं सिंटैक्स है वो थोड़ा सा चेंज हो गया. एक्यूमुलेटर और पोर्ट की जो प्लेसेस हैं ये इंटरचेंज हो गई हैं, और इनकी जगह पे हम यहाँ पर आउट मेंशन करते हैं. So what this instruction will do, this instruction will send the data of accumulator to the port address specified in this instruction. Again हमें क्या करना है, we need to specify कि we are sending 8-bit data or 16-bit data. If 8-bit data has to be sent, we can specify AM. If 16-bit data is to be sent, then we need to specify AX in the instruction syntax. Then same चीज DX के साथ भी है, DX AC लिखेंगे. It means कि हमें जिस पोर्ट पे डेटा को सेंड करना है उस पोर्ट का एड्रेस इस DX रजिस्टर में स्टोर्ड है. तो सेम बिल्कुल जस्ट अपोजिट टू द इंस्ट्रक्शन, ये आउट की भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी. अब नेक्स्ट फिर कैटेगरी है अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन की. तो पहला टाइप तो हमने डेटा ट्रांसफर का डिस्कस कर लिया. अब नेक्स्ट इज अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन. तो डेटा ट्रांसफर के इंस्ट्रक्शंस में किसी को कुछ डाउट हो तो पूछ लीजिएगा. हम अर्थमेटिक स्टार्ट करते हैं. अर्थमेटिक में भी अगेन आपको सिमिलर इंस्ट्रक्शंस मिलेंगी कंपेयर टू 8085. जैसे मूव हम लोग यूज कर रहे थे वहां पर, यहाँ भी यूज किया है. ऐसे ही अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन में भी एडिशन सब्ट्रैक्शन अगर हम परफॉर्म करेंगे तो वी विल यूज सेम निमोनिक हियर आल्सो. तो एज यू सी कि हमने यहाँ पर भी ADD ऐड को एज अ निमोनिक यूज किया है, बट सिंटेक्स चेंज होगा. एंड सिंटेक्स चेंज होने का लॉजिक सेम है 8 बिट और 16 बिट वाला, कि हमें ये स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि हम 8 बिट डेटा को ऐड कर रहे हैं या 16 बिट डेटा को ऐड कर रहे हैं. दैट इज व्हाई हमें ऐड इंस्ट्रक्शन में एक्यूमुलेटर को यहाँ पर स्पेसिफाई करना पड़ेगा.
अदरवाइज 8085 में हमने कहीं पर भी एक्यूमुलेटर को अलग से स्पेसिफाई नहीं किया, बिकॉज दैट माइक्रो प्रोसेसर वाज डिजाइंड ओनली टू परफॉर्म 8 बिट ऑपरेशन एंड 8 बिट रजिस्टर ही वहां पर थे, एंड दैट इज वाई वहाँ 8 बिट ऑपरेशन हो रहा था और एक्यूमुलेटर से ही होना है, ये तो हमें पता ही है। तो in that case there was no need to specify accumulator in the syntax of instructions, but here we have to specify accumulator also कि we are using 8 bit or 16 bit। तो एडिशन भी देख लेते हैं। अब एडिशन बिल्कुल सिमिलर 8085 की तरह ही है कि वी कैन ऐड इमीडिएट डेटा टू एक्यूमुलेटर, वी कैन ऐड मेमोरी टू एक्यूमुलेटर, or we can add register to register, memory to register, or any combination of these। तो let us see examples कि हम किस तरह से लिखते हैं। तो जैसे हमने ये फर्स्ट इंस्ट्रक्शन की बात की, तो अगेन यहाँ पर हम एडीआई इंस्ट्रक्शन नहीं यूज कर रहे, जैसे एमडीआई वहां यूज कर रहे थे फॉर इमीडिएट डेटा। ऐड इंस्ट्रक्शन का ही यूटिलाइजेशन होगा एंड इमीडिएट डेटा विल बी गिवन इन द सिंटैक्स ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो ऐड, फिर एक्यूमुलेटर गिवन है एंड देन फिर डेटा गिवन है। अब एज पर द डेटा हमें एक्यूमुलेटर स्पेसिफाई करना हो। एग्जांपल यहाँ पर ले लेते हैं, जैसे कि हमने लिखा ऐड स्पेस देके लिखा AL और कॉमा करके हम लिखेंगे 05H। तो ये डेटा कुछ भी हो सकता है 8 बिट का। तो इन दिस इंस्ट्रक्शन यू कैन इजिली आइडेंटिफाई कि दिस इज अ 8 बिट data, and that is why we are using AL, it is also of 8 bit, and now 8 bit of addition will be performed here। and same instruction को अगर हमें 16 bit का ऑपरेशन करना है तो हम add लिखेंगे, add के बाद में यहाँ पर हम क्या स्पेसिफाई कर देंगे AX, we will specify AX here and comma करके now we will provide a 16 bit data। तो 16 bit data के केस में क्या होगा, लाइक जैसे हम लिख देते हैं A50H। So this is a 16 bit data and this is a 16 bit register accumulator, and both datas will be added when this instruction is executed। नेक्स्ट फिर ऐड मेमोरी कॉमा रजिस्टर टू डेटा। तो ये तो हमने एक्यूमुलेटर से एडिशन परफॉर्म किया है, बट यहाँ पर एक एडवांटेज क्या है कि हम किसी रजिस्टर या मेमोरी के डेटा से भी इमीडिएट डेटा को ऐड कर सकते हैं। फॉर दैट वी नीड टू स्पेसिफाई रजिस्टर और मेमोरी इन दिस प्लेस। तो यहाँ पर जो हमने AL लिखा हुआ है, तो जब हम AL यानी यहाँ पर रजिस्टर स्पेसिफाई कर सकते हैं तो हम कोई भी रजिस्टर स्पेसिफाई कर सकते हैं। दैट इज वाई यहाँ पर एक एक्स्ट्रा चीज ये आ जाती है, क्योंकि हमने सिंटैक्स को इनहांस किया है तो हम यहाँ पर किसी अदर रजिस्टर को भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। 8085 में यही चीज नहीं थी, क्योंकि हम ऐड इंस्ट्रक्शन लिख रहे हैं तो वो ऑलवेज एक्यूमुलेटर से ही परफॉर्म होगा। बट इन दिस केस एज we need to specify register here, that is why we can specify any register। तो यहाँ पर हम मेमोरी भी स्पेसिफाई कर सकते हैं, रजिस्टर भी स्पेसिफाई कर सकते हैं, और 8 बिट या 16 बिट जो भी हम यहाँ परफॉर्म करना चाहें वो ऑपरेशन यहाँ पर भी परफॉर्म कर सकते हैं। एंड दिस ऑपरेशन कैन ऑल्सो बी परफॉर्म बिटवीन रजिस्टर एंड मेमोरी। तो एनी कॉम्बिनेशन ऑफ दिस कैन बी यूज, मीन्स रजिस्टर टू रजिस्टर डेटा भी ऐड हो सकता है, मेमोरी टू रजिस्टर या रजिस्टर टू मेमोरी, कोई भी